Some mic is on. Check. Check. Very good morning to everyone. We all agree that of all the days in the week, when Satan really visits us is on Sunday mornings, just before the worship. मुझे आप लोगों का नहीं पता, मगर शैतान बाकी हफ्ते में किसी दिन नहीं आता, मेरे घर में रविवार की सुबह जरूर प्रकट होता है। Yeah, it's great to be here this morning. Let's just begin with a word of prayer. Oh Lord, our Heavenly Father, we thank you for this morning. Calm our hearts, we pray, for there are a million thoughts that can distract us this morning. But help us, Lord, and give us your grace so that we may pay absolute attention to what your word has to offer us this morning, so that we are able to tune our hearts to your word, and that will reflect in our being and in our living. We ask this in Jesus' name, amen. Amen. For the last 3 weeks, we have been looking from the book of Psalms. पिछले 3 हफ्तों से भजन संगीता से कुछ बातों पर हम अध्ययन कर रहे हैं, And Ashish has been doing a great work in unpacking some of the least studied Psalms. और भाई आशीष ने कुछ बड़े अच्छे कुछ ऐसे भजनों से हमसे बातचीत करा जो शायद बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। While he has been doing that, when our time comes, I'll go the other way and stick to something which is the more preached portion from the book of Psalms. परंतु जब मेरा समय आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उन भजनों में जाऊंगा जो कि काफी लोक परिचित है और लोग काफी उस पर प्रचार हो चुका है। And one of those is Psalm 32. और आज जो सुबह जिस भजन पर हम ध्यान देने वाले हैं वो भजन संगीता 32 है। And I'm more certain that after you hear me and I'm through with the sermon today, you'll start to appreciate Ashish more. Sorry, actually it's howling. It just wants. Is this better? Check. Hello. Check. Hello. Hello. Check. And this went off. This went off. Is it okay? Increase the volume for maybe his mic. Check 1 2 3. Check 1 2. Check 1 2. All right. Now I was saying that once I'm through with the psalm today this morning, you will start to appreciate Ashish more. और मैं कहना ये चाहता था कि जब मैं इस भजन से प्रचार कर चुका होऊंगा तो आप भाई आशीष के कदमों में गिर जाएंगे। If there be top two to three books that are most read in the book, in the Bible, Psalms definitely would be one of them, if not the most read. अगर इस पर ध्यान दिया जाए कि ऐसी कौन सी किताब है बाइबल में से, कौन सी ऐसी किताब है जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, पहले 3 में से भजन संगीता ज़रूर एक ऐसी किताब है जो लोक परिचित है, लोग उसको बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। So when we read the Psalms, these are wonderful God-centered poems or songs that the psalmists have written. और जब आप भजन पढ़ते हैं तो इस बात को याद रखिएगा और समझने को ये मिलता है कि परमेश्वर आधारित, परमेश्वर केंद्रित कुछ गीतों को हम यहाँ पर देख पाते हैं। And you discover that there's hardly any experience of life which is not mentioned here. और आप एक और चीज देखते हैं कि ऐसा कोई जीवन का अनुभव नहीं जो यहाँ पर भजन संगीता में आप और हम नहीं पाते। Sorrow and joy, love and loss, fear and failure, hope and happiness, deceitfulness and disappointment, every emotion that you can think of is covered in these psalms. जो भी भावना आप सोच सकते हैं, चाहे वो दुख का हो, आनंद का हो, प्रेम का हो या भय का हो या ईर्ष्या का हो, जो भी भावना आप सोच सकते हैं, सारे भावनाओं को आप कहाँ पा सकते हैं? उसको भजन संगीता में पा सकते हैं। But when we come to Psalm 32, it is one of the 7 penitential psalms, and which is the cry of the penitent or the contrite or the remorseful for forgiveness. और परंतु भजन 32 में अगर आप पहुंचते हैं
तो वहां पर आप विलाप के एक भजन को आप पढ़ते हैं, या एक ऐसे भजन को पढ़ते हैं जो क्षमा मांगता है, या माफी का भजन कह सकते हैं। And that's why I've titled this sermon today, this morning, The Joy of Forgiveness. और इसलिए मैं आप आज सुबह का जो भजन है उसका जो शीर्षक मैं ये देना चाहता हूं, माफी का आनंद। And it is said that this is written after Psalm 51. और ये कहा जाता है कि भजन 51 के बाद भजनकार ने इस भजन को लिखा है। This psalm begins, as do number of psalms that we see, with the word blessed or the word happy, and that would be a more accurate translation. और अंग्रेजी में जो ब्लेसेड है या हिंदी में उसको धन्य कहते हैं, परंतु अगर उसका सही आप अनुवाद करें उस शब्द का मतलब है आनंदित, या आनंदित है वो व्यक्ति जिसके जो आप आयत आगे पढ़ेंगे। A word that we long to hear and feel, isn't it? हम लोग आनंद जो है या आनंदित होना एक ऐसा शब्द है और एक ऐसी भावना है जो आप और हम हमेशा अपने जीवन में चाहते हैं ना। Word happy is something that the world runs after, albeit in things that they find delight in. और खुश होना, खुशी जो है एक ऐसी भावना, एक ऐसी चीज है जिसके पीछे संसार भागती है, और बहुत सारी चीजें इसके नाम पे बिकती है कि ये खरीदते ही आपको आनंद या खुशी मिल सकता है। All the advertisements that we see today would sell you this, sell you the ultimate happiness through their products. आप जो कोई भी टीवी में देखें, एड्स देखें, या कोई भी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, वो यही बोलता है कि इसको लेते ही आप खुश हो जाएंगे। सबसे ज्यादा खुशी तभी मिलेगी जब आपको ये आप सामग्री हमसे खरीदेंगे। We live in a world which seeks happiness in relationships, material things, position, power, money, and everything, every little thing under the sun, but none will point you to the ultimate delight which the psalmist points us to this morning. प्रिय चीजों, हम एक ऐसे संसार में रहते हैं, इसको याद रखिएगा। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो कि आनंद को या खुशी को संबंध में ढूंढने की कोशिश करती है, आर्थिक चीजों में ढूंढने की कोशिश करती है, अपने जहां पे आप कार्यरत हैं वहां पे कौन से स्तर पे हैं उस पे ढूंढने की कोशिश करती हैं, पैसों में ढूंढने की कोशिश करती हैं। इस संसार में या इस सूरज के नीचे जो कोई भी चीज मनुष्य पा सकता है या हाथ रख सकता है, उसमें मनुष्य जो है आनंद पाने की कोशिश करता है। Bible calls us to be honest about ourselves because Bible is honest about us. परंतु ये जो भजन है वो हमको दिखाता है कि मनुष्य का सबसे सर्वोच्च आनंद कहां पर है, और बाइबल कहता है कि उसके लिए सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि हम अपने तरफ ईमानदार होना चाहिए, हमें अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। But the problem is that because we are so dishonest about ourselves, we don't like the honesty of the Bible. अगर हम बेईमान हैं तो हम सबसे पहले अपने लिए बेईमान हैं, और इसलिए हम लोग बाइबल जो हमें बोलता है उसको हम सुनने से पसंद, या उसकी बातों को सुनना हमें पसंद नहीं है। We tend to turn away from the uncomfortable things of the scripture because it turns the very searchlight on your heart and mind. हमारी जो बेईमानी है, हमारा जो दिल है जो कि अंधकार से भरा हुआ है, उससे उन चीज़ों से दूर जो भी चीज़ें हमें बड़ी पसंद है, जैसे कोई चीज़ हमारे दिल की सच्चाई को हमारे सामने लाती है, वो या वचन जो है उससे हम दूर भागते हैं, हमें वो ज़्यादा पसंद नहीं है। Three things I would like to focus on this morning from the psalm is one, the burden of unconfessed sin. और पहली तीन चीज़ों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला कि अगर आपके जीवन में पाप है और आपने प्रायश्चित नहीं किया है तो उसका भार क्या होता है, उसका बोझ के बारे में बोलना चाहता The हूँ। second is the power of confession. दूसरा कि हम जब पश्चाताप करते हैं तो उसकी सामर्थ्य क्या होती है, उसके बारे में आपके सामने रखना And the चाहता third हूँ। is the joy of forgiveness. तीसरा ये है कि जब हमें माफी मिल जाती है उसका जो आनंद है उसके बारे में आपसे बातचीत करना But चाहता before हूँ। we begin that, it is important for us to take the first three words that David uses to describe his situation. That's in verse 1 and 2. And three words we see is sin, transgression and iniquity. दाऊद जो है अपनी परिस्थिति को समझाते हुए तीन शब्दों का इस्तेमाल करता है, और उसको हम पहले तीन आयतों में पाते हैं। हम वहाँ पर इसको देखते हैं, अधर्म को देखते हैं, अपराध को देखते हैं, पाप को देखते हैं। But one of the things that he starts, though the psalm is with the word happy. परंतु वो भजन की शुरुआत कैसे करता है? क्या कहता है? क्या ही
आनंदित या खुश है जिसका अपराध क्षमा किए गए हैं। Seems like a classic oxymoron where word happiness is used in context of these three words. पर कितना अजीब एक विरोधाभास को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर आनंद शब्द का इस्तेमाल किया गया है, खुशी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। किसके साथ? ऐसे शब्दों के साथ अपराध, पाप, अधर्म के साथ खुशी का शब्द का इस्तेमाल किया गया या धन्यता का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। And we'll try to uncover that as we go through this today, this और morning. भजनकार इसका इस्तेमाल क्यों करता है? अधर्म और खुशी और आनंद के आसपास के शब्दों के इस्तेमाल क्यों करता है? इसको आज हम देखेंगे। The three words. First is transgression, or as we say, trespassing or transgressing. पहला शब्द जो है वो अपराध को हम देखते हैं। We do go to places and you would see these boards which would say what? Do not trespass. और आप कहीं जाते होंगे, कहीं पे अगर आपने कई बोर्डों को देखा होगा जहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे घुसपैठ करना मना है या घुसना मना है। So when we violate that and when we go into that territory, what happens? We become the transgressors or the trespassers. जहाँ पर जो सीमा बना दी गई है और उस सीमा पर लिखा है यहाँ पर घुसना घुसपैठ करना मना है, अगर आप वहां पर चले जाते हैं तो आपको घुसपैठ बोला जाता है या ऐसा व्यक्ति बोला जाता है जिसने सीमा का उल्लंघन किया है। So when we look at this aspect in relation to the law of God, in which he relates to loving him and having no idols before him, no covetousness, no theft, and so on and so forth, we find that we, by our individual choices, we have what done? We have trespassed and hence have become transgressors. और अधर्म हम अपराध कैसे करते हैं? अपराधी हम कैसे बनते हैं? परमेश्वर ने हमको साफ शब्दों में अपना नियम दिया हुआ है। उसमें लिखा है कि तुम 10 नियम दिए हुए हैं और 10 नियम को बड़े साफ लिखा है कि तुम अपराध नहीं करोगे या और तुम अपने माता पिता का आदर करोगे। ऐसे कई नियम दिए गए हैं। हम अपराधी कब बनते हैं? हम अपराधी तब बनते हैं जब हम नियम का पालन नहीं करते हैं। पालन तो छोड़िए, हम उल्लंघन करके कहते हैं कि ये नियम ही नहीं है और इस कारण हमको अपराधी बोला गया है या हमने अपराध किया है। Second word is sin. It's a 3-letter word, very familiar word to all of us. और उसके बाद हम पहली आयत में ही दूसरे शब्द को पाते हैं, पाप। बहुत ही हम सबको ये शब्द पता है और इस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, But we don't like the sound of it, do we? परंतु जब अगर हमसे कोई इसके बारे में हमसे बात करे तो उनको उतना पसंद नहीं है। Sin effectively means missing the mark or failure to obtain an objective or an ideal. और बाइबल में जब आप पाप की परिभाषा पूछे तो बड़ा सरल इसकी परिभाषा है। परमेश्वर ने जो स्तर हमारे लिए बनाया है, परमेश्वर ने कहा है कि अगर इसी स्थान में हमको पहुंचना है और अगर हम उस स्थान में नहीं पहुंच पाते हैं, उस स्तर को हम हासिल नहीं करते हैं, तो उसको पाप किया जाता है। परमेश्वर का किया गया जो स्तर है उससे दूर हो जाना, उसको आप पाप कहते हैं। Most of us have ideals and objectives, in our lives which we hold dear to. प्रिय अजीजों, हमारे जीवन में हम लोग अपने जीवन में उद्देश्यों के साथ जीते हैं। हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसी चीज़ों का पालन करें जिसको हम सही मानते हैं। But if you were to be honest, we don't live as per our own standards, forget about God's standards. परंतु हमारे जो आदर्श होते हैं उस आदर्शों को हम ही नहीं मान पाते हैं, तो परमेश्वर के दिए आदर्शों को आप कैसे मान पाएंगे? We consistently miss God's mark. और इसलिए हम लोग परमेश्वर के बनाए गए जो आदर्श हैं, परमेश्वर के बनाए गए ये दिए गए वो जो नियम हैं, उसका उल्लंघन हम पूर्ण रीति से करते हैं। And the third word is iniquity. What does it mean? It means moral perversion and internal bias, as we would call, or the corruption of our nature. और यहाँ पर दूसरी आयत में हम लोग अधर्म या तीसरे शब्द को देखते हैं। अधर्म मतलब जो परमेश्वर जो आपके जीवन या हमारा जो जीवन किस प्रकार सड़ चुका है, हम लोग जिस प्रकार हमारी आत्मा, हमारा शरीर किस प्रकार पाप के कारण सड़ चुका है, उसके बारे में हमसे बताया जाता है। जहाँ पर हमारा स्वभाव जो है वो हर प्रतिदिन बिगड़ता जाता है, सड़ता जा रहा है। We have looked at what sin is and what it has done to mankind. In our Bible study very closely, we have looked at it in our Bible studies, what is the gospel over the last many weeks. और पिछले कुछ हफ्तों में जब हम लोग पढ़ने अपनी बाइबल स्टडी में जो पढ़ रहे हैं कि सुसमाचार क्या है,
पाप ने मनुष्य के साथ क्या किया है, इसके बारे में हमने काफी अच्छे अध्ययन करे हैं। So that brings us to the first point, which is the burden of unconfessed sin, and we will start with verses 3 and 4. ये 3 शब्दों को जब आपने पढ़ लिया, इसका हमने बताने का कारण ये है कि इसको समझना जरूरी है, तभी हम इस भजन को समझ पाएंगे। अब हम पहली बात को देखेंगे। पहला बिंदु जो है वो ये है कि जब हम पापों का प्रायश्चित नहीं करते हैं, उसको मानते ही नहीं हैं, तो उसका बोझ जो हमारे ऊपर है उसके बारे में बात करेंगे। We have heard this quite often, that one lie leads to another lie. हमने ये बहुत बार सुना है कि एक झूठ को छुपाने के लिए, ढाकने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। And one sin leads to another. और हमने एक और बात सुना है कि आप एक पाप करते हैं तो वही पाप आपको दूसरे पाप की तरफ ले जाता है। And if we do it long enough, our conscience goes numb, and before we know it, we are in that circle and in that loop. और अगर हम लोग पाप करते ही चले जाएं, एक पाप के बाद दूसरा, एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, और 100 झूठ ऐसे बोलते जाएं, तो क्या होती है? So हमारी आत्मा थर हो जाती है। हमको पाप से भी कोई मतलब नहीं लगता, हमको पाप भी जीवन लगता है, झूठ भी जीवन लगता है। झूठ कुछ दिन के बाद सच्चाई लगने लगती है। most of us, if not all of us, if we are honest, have gone through or are going through something like this. और सच्चाई ये है कि अगर हम अपने आप से ईमानदार हैं तो हम लोग अपने जीवन में इस सच्चाई से दूर नहीं भाग सकते। हमें पता है कि हम अपने आदर्शों से दूर चले जाते हैं, हम लोग झूठ का एक जीवन जीते हैं, या हमारे जीवन में ऐसी मुश्किलें, ऐसे पाप है जिससे हम बच नहीं पा रहे हैं। Unconfessed sin, without a doubt, takes a spiritual, emotional, and physical toll on us, and more importantly, it breaks the relationship and intimacy with God. प्रिय चीजों, अगर हमारे जीवन में एक ऐसा पाप है, एक ऐसा झूठ है जिसका हम प्रायश्चित नहीं कर पाए, जिसके लिए पछताप नहीं कर पाए हैं, तो याद रखिए, ये आपको शारीरिक रूप से बिगाड़ देगा, ये आपको मानसिक रूप से बिगाड़ सकता है, और ये आपको आत्मिक रूप से बिगाड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जब आपके जीवन में पाप है और जिसका आपने प्रायश्चित पछताप नहीं किया है, वो आपका जो परमेश्वर के जो साथ जो संबंध है वही टूट जाता है। And here we see in verse 3 and 4, David reminds us of this hard reality. और इसलिए यहाँ पर भजन लिखने वाला दाऊद तीसरे आयत में इस सच्चाई को हमारे जीवन के सामने लाता है। We know the context of Psalm 51. हम लोग भजन 51 जो है उसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं। Indeed, a dark phase in the life of David, where he stooped down to the lowest levels of what man can go to. हम देखते हैं दाऊद 51 भजन में दाऊद अपने जीवन में एक ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरा, या उसने ऐसे एक पाप किया जो कि मनुष्य के लिए सबसे दयनीय स्थान है, उससे नीचा आदमी नहीं जा सकता। उस पाप को करे हुए दाऊद भजन 51 लिखता है जब उसका प्रायश्चित करता In है। this incident we see adultery, deceit, murder, and wicked scheming, all of which would attest how sin can corrupt man, not only man, even the man who was declared to be man after God's own heart. प्रिय चीजों, एक छोटे से जब उसने देखा और उसको पसंद आया, उस चीज को पूरा करने के लिए, उस पाप को पूरा करने के लिए, हम देखते हैं दाऊद एक पाप के ऊपर दूसरा पाप करता है। पहले वो देखता है, उसे पसंद आता है, वो व्यभिचार करता है, व्यभिचार के बाद वो हत्या करता है, हत्या करने के बाद वो चीजों को छिपाता है, अपने कार्यों से रह जाता है। हम देखते हैं एक पाप को करने के लिए वो कितने पाप कर जाता है। I couldn't help but recall Genesis 6:5. The Lord saw the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his hearts was only evil continually. और जब मैंने इन आयतों को पढ़ा, मैं उत्पत्ति उसकी 6वीं अध्याय 5वीं आयत को सोचने लगा। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की अधर्मिकता या पाप कितना बढ़ चुका है, और मनुष्य का जो हृदय है वो हर वक्त शाश्वत रूप से क्या है? दुष्ट है, और दुष्टता की बातें उत्पन्न करता है। Not only that, David was also a denier. प्रिय चीजों, यहां पर ऐसा नहीं था कि दाऊद ने पाप किया, एक पाप किया, 2 पाप किया, या 100 पाप किए, परंतु उसने पाप करने के बाद उसने एक काम किया। क्या किया? उसको कहा कि माना नहीं।
कह रहा मानने की जरूरत नहीं है, उसको छुपाने की उसने कोशिश करी। So from the time he sinned against Bathsheba until the time he was confronted by prophet Nathan, it is that period of denial that we see as the period of unconfessed sin. जब उसने बतशेबा के साथ व्यभिचार किया, हत्या किया, और उसके बाद जब तक उसको ढाक के रखा, अपने पापों को ढाक दिया उसने और उसको छिपाने की कोशिश करी, तो वो समय कितना अंतरकाल अगर आप देखेंगे तो जब तक शमूएल उसके सामने वापस, नाथन उसके सामने वापस नहीं आता है, उस वक्त तक वो अपने पाप को छुपा कर रखता है। So it is that period of 9 to 10 or about an year, that he is referencing in verse 3 and 4. जब वो तीसरी चौथी आयत को लिख रहा है तो वो उस समय, उस अंतकाल की बात कर रहा है। करीब करीब 1 साल दाऊद ने अपने पाप को छिपाने की कोशिश करी, उसको अंगीकार करने की उसने बिल्कुल कोशिश नहीं करी। And so he says, when I lied, when I covered up, when I sought to dissemble and hide my dreadful deeds, he says, then my tortured conscience produced these physical symptoms. और उस यहाँ पे कहता है, जब मैंने छुपाने की कोशिश करा, जब मैं चुप रहा, तब दिन भर करहाते करहाते मेरी हड्डियां पिघल गईं। तीसरी आयत को पढ़ रहा हूं मैं। My bones cling to me, my skin clings to my bones. I am fevered in the day. I am unable to sleep at night. क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी और झुराहट बनती गई। And we see in verse 3 and 4 the hand of God. It's as if there's a visual representation of these two hands coming down from heaven, and it's on the neck of David. और यहाँ पर दाऊद जो है वो कहता है, क्योंकि मैंने पाप का अंगीकार नहीं किया, मैंने पाप को छिपाने की कोशिश करी, तो वो कहता है कि परमेश्वर का हाथ, एक प्रकार 2 हाथ उसके ऊपर हो जाता है, उसके ऊपर आ जाता है, और परमेश्वर का हाथ उसको नीचे दबा रहा है। उस प्रकार का चित्रकरण यहाँ पर दाऊद कर रहा है। The joy or the happiness was not there because the relationship with God was broken. प्रिय चीजों, यहाँ पर ये दर्द का और दुख का और इसका पीड़ा का समय क्यों था? क्योंकि दाऊद ने पाप किया और पाप करके उस पाप को उसने छुपाने की कोशिश करी, पछताप या प्रायश्चित नहीं किया, इसलिए परमेश्वर के साथ जो संबंध था वो टूट गया, और उस कारण उसके जीवन में जो आनंद थी, जो परमेश्वर की तरफ से आती है, वो चली गई। If happiness was his greatest desire, which I'm sure is yours and mine, then he points out that sin was his greatest dilemma, his hidden sin and his unconfessed sin. और वो कहता है कि आनंद जो है उसके मन की, उसकी जीवन की सबसे बड़ी इच्छा है, परंतु प्रिय चीजों यहाँ पर वो कहता है क्योंकि उसने पाप किया और उस पाप को छिपाने की कोशिश करी, उस कारण उसके जीवन से आनंद जो है विलीन हो गया। And it is because of God's heavy hand that rests on him, on the psalmist, that he is able to be led into acknowledging his sin. परंतु क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, परमेश्वर का बोझ वाला हाथ उसके ऊपर था, यहाँ पर दाऊद कहता है उस कारण मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर अपने पापों का अंगीकार करता हूँ। Until then, what was he doing? He was lying about it, covering it up, justifying it. So do we, right? When प्रिय we sin. चीजों, दाऊद 1 साल तक जब उसने पाप कर लिया तो वो क्या कर रहा था? जो हम करते हैं, पाप करने के बाद उसको ढांपते हैं, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, या तो हम क्या करते हैं, हम उसको हर तरीके से कोशिश करते हैं कि उस पाप को या झूठ को सच्चा दिखा दें। अपने जीवन में हर तरीके की कोशिश करते हैं जिससे कि हम कह सकते हैं, हम सफाई देते हैं कि ये ठीक है, ये अच्छी बात करी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। Irrespective of our age, as long as we have lived, clubbed with our life experiences, we can all agree that there is a correlation between what goes on inside will reflect on your face. और हम लोग इस बात को बिल्कुल साफ कह सकते हैं प्रिय अजीजों, हम लोग जितनी भी कोशिश करें, बहुत लोग कोशिश करते हैं, जो भी हमारे मन में चल रहा होता है वो हमारे शक्ल पर या हमारे मुंह पर वो बात दिख पड़ती है। The only difference is that some of us can mask it well and some of us can't. और उसमें फर्क यही है कि हम में से कुछ अच्छे एक्टर हैं और कुछ खराब एक्टर हैं। David was able to, during this period, what was he able to do? He was able to tend to his kingly responsibilities quite well on the surface as he would. और यहाँ पर दाऊद क्या करता है? पाप करने, इतने घिनौने पाप करने के बाद
दाऊद कहता है, मुझे कोशिश करता है कम से कम कहने के लिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने राजकीय जो कार्य है, उसका उत्तरदायित्व है, उसको वो ठीक तरीके से उसको पूर्ण कर रहा है। And we do it by covering it up. We go to work, our offices, our classrooms. We do our part, we do our set of responsibilities. Yet in our heart, we may identify with verse 3 that when I kept silent, my bones wasted away. प्रिय चीजों, हम लोग जब पाप करते हैं उसके बाद हम कई चीजों को करने की कोशिश करते हैं जिससे कि ये पाप का जो दर्द है वो जीवन से कहीं ना कहीं चले जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हम ऑफिस चले जाते हैं, या अपने जहाँ पर अगर पढ़ना है तो पढ़ने चले जाते हैं, या हम संबंध बनाने लगते हैं, या हम टीवी देखने लगते हैं, या हम शॉपिंग करने लगते हैं। हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जिससे कि ये जो पाप का जो भार जो मेरे दिल में है वो किसी ना किसी तरीके से थोड़ा कम हो जाए, वो मुझे इतनी अंदर तरीके से खाए ना। तो अकेला बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि कैसे भी ये पाप का दर्द हमारे जीवन से चला जाए। So publicly he was managing, but privately he was collapsing. यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद को, शायद जब दाऊद की प्रजा जाके देखती होगी तो कहती होगी, वाह क्या बढ़िया राजा है, कितने बढ़िया तरीके से अपने काम को कर रहा है। परंतु जब वो ये काम कर रहा था, अंदर अंदर वो तीसरे आयत में क्या कहता है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर करहाते करहाते मेरी हड्डियां पिघल गईं। This may be an apt description for most of us, if not all of us this morning. प्रिय चीजों, ये हमारे जीवन की शायद सच्चाई हो सकती है। आज सुबह जब हम यहाँ बैठे हैं, ऊपर से हम आनंद खुशी की करने की नाटक कर रहे हैं, या हमारे शक्लों में हम एक हंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हमारा जो हृदय है वो और हड्डियां जो हैं अंदर से पिघल रही हैं। We might wriggle in our seats this morning a bit, and in our minds we are thinking that I hope nobody is able to see what's going on inside of my mind right now. हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी मैं एक अच्छी हंसी लोगों के सामने दिखाऊं, मैं ऐसा दिखाऊं कि मैं यहाँ पर बैठा हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। या हम ये कोशिश, और क्यों हम ये सब कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि कोई हमसे मेरे दिल में जो बात है वो क्या चल रही है उसको पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा कोई मुझसे कुछ ये ना पूछ ले कि भाई या बहन आपके दिल में सच्ची में कौन सी बात चल रही है। उससे हम डरते हैं और उसको छिपाने के लिए हम बहुत और सारी कोशिश करते हैं। That's the burden of unconfessed sin, and when we carry that in our lives, it will absolutely result in an absolute collapse in our relationship, our intimacy with God. प्रिय चीजों, अगर आपके जीवन में और हमारे जीवन में ऐसी पाप है, ऐसा झूठ है जिसको हमने छिपाने की कोशिश करी है, जिसको हम परमेश्वर के सामने उसका प्रायश्चित नहीं कर रहे हैं, तो प्रिय चीजों, आप और हम उस पाप के बोझ के नीचे दब जाएंगे, हम लोग उसके नीचे कुचले जाएंगे, और उस भार को लेके चलना करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि परमेश्वर के दोनों हाथ आपके और हमारे ऊपर हैं। उस पाप के कारण उस हम परमेश्वर का जो बोझ है वो हमारे ऊपर है। And then as we see, and when we get into verse 5 onwards, we see the transition. We see a God who pursues David relentlessly. परंतु यहाँ पर दाऊद की कहानी तीसरे चौथे आयत में खत्म नहीं होती है। वो बातों को छिपाना चाहता है, उसके हड्डियां गल रही हैं, परंतु उसकी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। वो 5वें आयत में आता है और हम वहां पर बहुत बड़ी एक बदलावट को होते हुए देखते हैं। We see the transition in David's state as we move from verse 3 to verse 5, which leads us to the second point this morning, the power of confession. हम लोग तीसरे से 5वीं आयत तक पहुंचते हैं। यहाँ पर दाऊद के जीवन में एक बदलावट को हम देखते हैं, और वो मुझे दूसरे बिंदु की तरफ लेके आता है कि प्रायश्चित का या पश्चाताप का सामर्थ क्या है। When I kept silent, he says, this is what I experienced, and then he says, I acknowledged my sin to you. Then I did not cover up my iniquity, and then I said, I will confess my transgressions to the Lord, and then you forgave the guilt of my sin. 5वीं आयत मैं अभी भजन 32 उसकी 5वीं आयत को पढ़ रहा हूं, मेरे साथ आप ध्यान दें। जब मैंने अपने पाप किसको तुझ पर प्रकट किया और अपने अधर्म ना छिपाए, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा,
तब तूने मेरे धर्म और पाप को क्षमा कर दिया। One thing that we can possibly miss as we go through this psalm is that his physical condition that we see in verse 3 was a terrible state that he was in, but under God's hand, it was actually good and for his benefit. तीसरी आयत को अगर आप पढ़े तो शारीरिक रूप से बड़ा दर्दनाक एक अवस्था होगा, है ना। अगर कोई कहता है कि पाप के कारण मेरे हड्डियां पिघल रही हैं, तो वो एक शारीरिक रूप से बड़ा दर्दनाक एक अवस्था है। परंतु अगर आप परमेश्वर के रूप में देखें, परमेश्वर उसके जीवन में यह दर्द इसलिए दे रहा है जिससे कि वो प्रायश्चित कर पाए, वो अपने पापों से भागे ना, उसको छिपाने ही ना कोशिश करे, परंतु अपने पापों को परमेश्वर के सामने वो रख पाए। Oh, it is true, dear ones, sometimes God has to break us We- and take us through an extremely difficult time in our lives by placing his heavy hands upon our necks. प्रिय जीजों, कई बार होता है कि परमेश्वर हमको मुश्किल विषम परिस्थितियों से लेके चलता है, जिससे कि परमेश्वर चाहता है कि हम पाप में ना जिए। जिस झूठ को हम जीने की कोशिश कर रहे हैं, उस झूठ को हम ना जिए। उस दर्द को हमको इसलिए परमेश्वर देता है जिससे कि हम कहें कि हे परमेश्वर, मुझे माफ कर, मैं अपने झूठ से, अपने पाप से बाहर निकलना चाहता हूं। His hands upon our necks and on us, albeit heavy, but it is full of grace. प्रिय जीजों, परमेश्वर का हाथ, जबकि सच बात है कि बोझ वाला है, भारी हाथ है, परंतु उसको हम अनुग्रह के हाथ को भी साथ साथ देखते हैं। It was the time when God brought him to the realization that the fundamental issue with David did not lie on the surface, but it lie in the very core of his heart. परमेश्वर उसको बताना चाहता है, चाहे तुम जितने भी अच्छी तरीके से अपनी नौकरी कर लो, तुम जितने अच्छे तरीके से एक राजा बन जाओ, तुम्हारी दिक्कत तुम्हारे परत पे नहीं है, पर तुम्हारी दिक्कत, तुम्हारी समस्या तुम्हारे हृदय में है, और उस कारण तुम्हारा हृदय ठीक होना है। वो ये सबसे अनिवार्य काम है। When we go through a guilty conscience, what does the outside voices say? Just cover it up. No? It's too much of a thing for you to take the risk of your name and your position in society. Just cover it up. Just move on. जब हमारे जीवन में अपराध बोध होता है, जब हम लोग कुछ गलती करते हैं या पाप करते हैं या झूठ बोलते हैं, हमें अपराध बोध होता है। परंतु जब अपराध बोध होता है, साथ साथ एक आवाज और कई आवाज हमें ये बताती हैं कि देखो यार, इसको अगर तुम बता दोगे ना, तुमने जो किया अगर तुमने बता दिया ना, समाज में लोग क्या बोलेंगे, चर्च में लोग क्या बोलेंगे, परिवार में लोग क्या बोलेंगे। इस कारण इस दर्द से बचने के लिए तुमने जो किया है उसको छोड़ दो, भूल जाओ, ये अपराध बोध के बारे में भूल जाओ। ये आवाजें हमारे दिल में हमेशा आती रहती हैं। Upon reflection, David can reply and he says, you know, when your hand was heavy upon me, when I was overwhelmed by these things, in actuality, I can see how it tended to my good. यहाँ पर दाऊद, परंतु उल्टे दाऊद अपने इतिहास को, अपने भूतकाल को याद करते हुए कहता है कि हे परमेश्वर, एक तरफ मैं बोल सकता हूं कि तेरा हाथ मेरे पर बहुत ज्यादा भारी था, परंतु दूसरे तरफ मैं ये बोल सकता हूं, अगर तेरा हाथ ना होता तो मैं इस पाप से और इस झूठ के जीवन से कभी बच नहीं पाता, तेरे पास नहीं आ पाता। Some commentators say that we can almost see a parallel with the younger prodigal son in Luke 15, where he had lost everything and reaches the lowest point in his life, and the hand heavy upon his neck, that he comes to his senses and he's determined that he is going to acknowledge his sin. और यहाँ पर एक टिप्पणी करने वाला, वचन का टिप्पणी करने वाला कहता है कि उड़ाव पुत्र के बारे में कहते हुए कहते हैं कि कुछ प्रकार उसी प्रकार का जीवन था, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर भारी हुआ, वो इस बात से अलग नहीं हो पाया कि मैंने ये गलती करी, इसलिए वो पहली चीज जो वो करता है वो क्या कहता है कि हे पिता, मैंने तुमसे स्वर्ग से पाप किया है, इसलिए मुझे माफ कर। वो उठ खड़ा होकर वापस जाने की तैयारी करता है। His bad physical condition confronted him with the spiritual reality. प्रिय यीशु, उसकी जो शारीरिक स्थिति थी, उसकी आत्मिक स्थिति को भी वहां पर हमारे सामने दिखाती है। Now confession doesn't merely standing up and saying sorry, oh Lord, I have done this against you. That's not it. जब आप, कई लोग इस बात को मानते हैं कि पश्चाताप का क्या मतलब है। पश्चाताप का मतलब है कि सुबह सुबह प्रार्थना में हमने
आपने बोला परमेश्वर कल मैंने ये गलती करी है, माफ कर दो। Three things that David does, and we need to understand this very carefully as he पश्चाताप confesses. पछतावा या पछताप करना जो है प्रिय जीजों, अपने में एक बहुत गहरी बात है। वो सुबह उठकर मुझे माफ कर दो परमेश्वर, मैंने गलती करी, ये शब्दों से आप पछताप सिर्फ नहीं कर सकते हैं। दाऊद किस प्रकार करता है इसको देखना बहुत जरूरी He है। understands these three things. One is the difference between grief and self-pity. वो यहाँ पर तीन चीजों को हमारे सामने लाता है। पहला चीज वो लाता है कि सही में मेरा दिल दर्द से भरा हुआ है। वो अपने आप को कोसता नहीं है, और अपने आप को कोसने में और सच्चे दर्द को वो समझता है। Grief is the realization of how much I have hurt God by my actions, while self-pity is warranting God's forgiveness basis how sorry I am, and look how I am weeping, and how look at me, it's inwardly bent. यहाँ पर दाऊद जो है वो अपने आप को कोसता है और ये नहीं कहता है कि देखो परमेश्वर मैं कितना दर्द से होके गुजर रहा हूँ, मैं कितनी आंसुओं तुम्हारे सामने मैं कितने आंसुओं के साथ तुम्हारे सामने आ रहा हूँ और इसलिए तू मुझे माफ कर दे। वो अपने आप को कोसते कोसते ये बात नहीं करता। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक दर्द को, एक सच्चे दर्द को हम देखते हैं। और दर्द क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि दाऊद कह रहा है कि ये पाप मैंने किसके खिलाफ किया है? परमेश्वर के खिलाफ किया है। हे परमेश्वर, मैंने तुम्हारे दिल को दुखाया है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूं। Second, what he does is that he owns up his mistake and he is ready to accept the responsibility and the consequences of the sin. यहां पर वो तीन चीजें करता है दाऊद। दूसरी चीज को अगर हम देखेंगे, पहली बात वो अपनी गलती को क्या करता है? मानता है। दूसरी बात उस गलती के कारण या अपने उत्तरदायित्व जो थे उसको वो मान जाता है। और तीसरी चीज, गलती के कारण हुए जो 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 परिणाम जो हैं उसको भी वो स्वीकार करता है और उसको मान लेता है। We see that David's repentance was deep and sincere, and when you go through Psalm 51, it's a powerful expression of his contrition. और इस बात को हम लोग भजन 51 में और साफ तरीके से पा पाते हैं, जहां पर वो सामर्थ के साथ दाऊद उसको बताता है। And he says in Psalm 51 verse 4, against you only have I sinned and done what is evil in your sight. यहां पर कई लोगों के साथ कई पाप करने के बाद दाऊद क्या कहता है? 51 उसकी चौथी आयत में कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे खिलाफ ही पाप किया है, तुम्हारे आंखों के सामने जो दुष्टता है उसको मैंने पूर्ण किया है। And he goes on to say, so you are right in your verdict and justified when you judge. और वो इसलिए कहता है परमेश्वर, तुम्हारा जो न्याय है, जो तुमने जो मेरे ऊपर न्याय किया है वो क्या है? ठीक है और सच्चा है। And when we see the story of David ahead, David accepted the consequences of his actions as declared by Nathan. और हम देखते हैं कि जो परिणाम जो इस पाप का जो नेथन उसके सामने रखता है, दाऊद वहां पर बिलबिला होकर गुस्सा होकर कहता है कि तुम भाग जाओ मेरे सामने से, मैं राजा हूं, मैं देख लूंगा। ऐसा कुछ नहीं करता है। नेथन जो उसको बोलता है वो उसको स्वीकार कर लेता है, कहता है कि मेरी गलती मैं मानता हूं और इसका परिणाम को भी मैं मानता हूं। And the consequences in the consequence included the death of the child born to Bathsheba. We see that in 2 Samuel 12:14 to 18. और हम देखते हैं एक परिणाम जो उसके जीवन में आता है वो ये है कि जो बच्चा जो बतशीबा को हुआ, जो पहला बच्चा जो था वो मर जाता है और उस बात को दाऊद मान लेता है। Despite his prayers and fasting for the child's life, David accepted God's judgment without resentment. दाऊद जो है वहां पर एक राजा की तरह बहुत बड़ी चीजें नहीं करता है। वो उस छोटे बच्चे के जीवन के लिए प्रार्थना करता है, खाता नहीं, वो उपवास करके प्रार्थना करता है, परंतु सब के बावजूद भी वो अपने पापों का जो परिणाम जो है पूर्णतः मान लेता है। And not only that, he continues to seek God, that after the child's death, David continued to worship and seek God's presence. He washed, changed his clothes, went into the house of the Lord,
to worship. 2 Samuel 12 verse 20. प्रिय चीजों, यहाँ पर दाऊद को हम दूसरी चीज करते हुए देखते हैं। जब तक उसका बच्चा मरता नहीं तो वो उपवास करके प्रार्थना करता है। जब अगर उसको खबर मिलती है कि उसका बच्चा मर जाता है तो हम देखते हैं कि वो अपना वस्त्र बदलकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर वो वहां पर उसकी आराधना करता है। This act signified his ongoing faith and reliability, and that his reliance on God despite the severe consequence. कई बार होता है कि क्योंकि जब पाप का परिणाम हमारे ऊपर आता है तो हम परमेश्वर से और गुस्सा हो जाते हैं। हम शायद परमेश्वर को कहते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, परंतु दाऊद के जीवन में पाप करने के बाद उसका जो परिणाम झेलने के बाद भी हम दाऊद को क्या करते हुए पाते हैं? हम उसको आराधना करते हुए पाते हैं। We are forgiven in Christ, but why the confession? और हम लोग प्रभु यीशु मसीह में, आप कहेंगे अरे हम सब तो माफ किए गए हैं, पर प्रभु यीशु मसीह में हमको वो माफी मिल चुकी है, तो कई बार क्यों हम प्रायश्चित करें, हम पश्चाताप क्यों करें? Oh, after this there's going to be a confession prayer. प्रिय जीजों, इस प्रचार के बाद हम लोग एक पश्चाताप का प्रार्थना करेंगे। It is just to reflect on the fact that how we miss the mark every day, and that our unconfessed sin should not take us away from the relationship, the fellowship and the intimacy with God. प्रिय जीजों, जब तक हम अभी भी अपने जीवन में हम लोग अपने जीवन में स्थिर नहीं हुए हैं या हम लोग सिद्ध नहीं हुए हैं, इस कारण हम अपने जीवन में पाप करते हैं और पाप करते चले जाते हैं। और अगर हमने पछताव का जीवन नहीं रखा है, हम ऐसे जीवन को नहीं जीते हैं जहां पर हम रोज परमेश्वर के पास जाकर अपनी पापों की माफी नहीं मांगते हैं, तो प्रिय जीसो, इस बात को याद रखिएगा कि आप एक ऐसे जीवन, ऐसी राह को चुन चुके हैं जो कि परमेश्वर के उल्टे तरफ चल रहा है और वो आपको परमेश्वर से दूर और दूर लेता हुआ चला जाएगा। TK says that even in our repentance we don't have the right motives. और यहाँ पर टिम केलर कहता है कई बार हमारे जब हम पछताव करते हैं उसमें भी जो हमारी नियत होती है वो ठीक नहीं होती है। We always find ways to bring self pity in. हम लोग जब पछताव करते हैं, जब हम लोग पापों की माफी मांगते हैं, अपने आप को कोसना जो है, अपने ऊपर दया दिखाने की जो अनुभव जो है, जो बात है, उसको हम बार बार लेके आ जाते हैं। But if we understand and truly repent, what does it do to us? परंतु प्रिय शिष्यों, अगर आप एक ऐसे जीवन को जीना शुरू करते हैं जो सचमुच में पछताव और प्रायश्चित का जीवन है, प्रिय जीवों, उससे आपका जीवन कैसे बदलता है? We don't mind being observed, we don't mind being exposed, we don't mind being acknowledged as flawed people. प्रिय जीसो, तब अगर आप ऐसे जीवन जिएंगे जहां पर आपको एक नाटकीय जीवन जीने की जरूरत नहीं है, एक ऐसी जीवन जहां पर अलंकारित जीवन जीने की जरूरत नहीं है, परंतु एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो एक सच्चा जीवन है, जहां पर आप लोगों को बुला सकते हैं कि देखो मेरे जीवन में ये दिक्कतें हैं और ये गलतियां हैं, परंतु उसके बावजूद भी मैं इस प्रभु परमेश्वर का पीछा करता हूं और करती हूं और उसके माफी को मैं रोज मांगता हूं या मांगती हूं। उस प्रकार का जीवन आप जी सकते हैं। नहीं तो आपका जीवन जो है एक आडंबर होगा, आपका जीवन एक पाखंडी जीवन होगा, क्योंकि आप अपने जीवन को हमेशा एक अलग तरीके से जीने की कोशिश करेंगे। So if we confess the fact of our transgression, the reality of our sin and the nature of our internal bias and moral perversiveness, then it will lead us to the joy of forgiveness, which is our final point. और प्रिय शिष्यों, अगर आप अपने जीवन में अपने अपराधों को, अपने पापों को अंगीकार नहीं करते हैं, अपने जीवन में झूठ की सच्चाई को नहीं मानते हैं, तो आप अपने जीवन में अपने आप को आत्मिक रूप से सड़ा रहे हैं। आपका जीवन हर दिन पाप में अगर बढ़ता जाता है तो आपका जीवन आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बिगड़ता जाता है। परंतु अगर आप मानते हैं, प्रायश्चित करते हैं, पछताव करते हैं, तो वो मुझे तीसरे बिंदु की तरफ लेके आता है, And that's the joy of forgiveness. और वो है पछताव का या प्रायश्चित का आनंद। And we see that in verse 1, David's expression, and verse 2, and then in verses 10 and 11. और हम लोग इसको पहले दो आयतों में, उसके 10 और 11वीं आयत में उस आनंद के बारे में हम पढ़ते हैं। And if David felt the anguish of unconfessed sin wasting away his bones,
He could now feel the joy and absolute delightness of forgiveness in his bones. यहाँ पर वो पहले क्योंकि उसने पापों की प्रायश्चित नहीं करी, उस प्रकार उसकी हड्डियां क्या हो रही थी, गल रही थी। परंतु जब उसने प्रायश्चित किया, पछताव किया, तो उसके हड्डियों के साथ क्या होता है उसको जरा हम देखेंगे। And you know what I was saying is that he could when in the first in verse 3 he says that he was wasting, I mean his bones were wasted away, but now he could feel the joy of forgiveness to his bones. Every inch of his body could feel that happiness that he was experiencing in जब उसने forgiveness. पापों को ढाका तो उसके हड्डियों तक पिघल रही थी, परंतु जब उसने परमेश्वर के सामने अपने पाप को माना, उसके जीवन में जो आनंद और खुशी आई, वो उसके हर पूरे शरीर को उसने छेक लिया, उसके पूरे शरीर पर वो आनंद प्रकट हो गई। Oh, verse 1, when we see, you know, David is saying that when I confessed my sin, what does God do? He covers it. Alright? Do you see that? और पहली आयत में ऊपर यहाँ पर दाऊद क्या कहता है, अगर मैंने अपने पापों का अपराध को माफ माना है, तो वो परमेश्वर जो है वो पाप को ढाप देता है, अधर्म को क्षमा करता है। When we see verse 7, David could almost foresee that God was going to be his covering. और 7वीं आयत में वो कहता है, क्योंकि मैंने अपने पाप को अंगीकार किया, तो कहता है कि तू मेरा शरण स्थान बन गया है। And there was a way in which he could hide in God and not from God. और जब क्योंकि उसने पापों का अंगीकार किया, प्रिय जीजों, वो आदम की तरह परमेश्वर से दूर नहीं भागा, परंतु वो यहाँ पर दाऊद क्या करता है, कहता है कि मैं परमेश्वर में शरण पाऊंगा। वो अपने आप को परमेश्वर में छिपा लेता है, परमेश्वर से छिपता नहीं है। For sin demanded that his holy wrath be turned on us, and there was no hiding place that the world could offer to protect us from it. क्योंकि इस बात को हम मानते हैं, क्योंकि अगर हम पाप में रहते हैं, प्रिय चीजों, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर होता है, और इस संसार में ऐसी कोई कोना नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर आप परमेश्वर के क्रोध से बच पाएंगे। Oh, David is happy because he has found his real hiding place in God and not away from God. यहाँ पर दाऊद इसलिए आनंदित है, इसलिए प्रसन्नित है, क्योंकि वो समझता है कि उसकी छिपने की जगह परमेश्वर से छिप नहीं रहा, परंतु वो परमेश्वर में छिप रहा है। Oh, when we look at sin and its pervasiveness and what it has done to mankind, we see that in Romans 1:24, what was our state? Therefore God gave them up in the lust of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves. And as we read on, God gave them up. और हम लोग देखते हैं कि पाप का बिना अंगीकार किए हुए अगर आप और हम अपने जीवनों को जीते हैं, तो इसका परिणाम हम रोमियो पहले अध्याय 24वीं आयत में कहते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें कौन जो अधर्मों में जीता है, जो पाप में जीता है, उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। But when we come and read that famous verse in John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son. परंतु हम उसी वक्त एक ऐसी आयत को भी पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि जो कोई इसमें विश्वास करे। Crucifixion was the worst kind of execution. प्रिय जीसो, क्रूसीकरण जो है वो एक ऐसी हत्या थी जो सबसे खराब एक हत्या को देखा जाता था। You were stripped naked, your arms tied or nailed to the cross. आपके वस्त्र उतारकर आपके हाथों को क्रूस पर बांध दिया जाता था। It was designed so that one dies slow and not fast. तो किस प्रकार क्रूस का मृत्यु इस प्रकार होता था कि व्यक्ति जो है तुरंत नहीं मर जाए, परंतु वो दर्द में कराहते अब हर श्वास में थोड़ा थोड़ा जीवन उसका जाता रहे। You did not die privately, you died publicly. जब अगर आपको क्रूस की मृत्यु आपको दी गई है, तो आप कहीं किसी अलग कोने में लोगों से छिपकर आपका टांगा नहीं जाता, वहां पर सार्वजनिक तरीके से आपको अपराध दिया जाता You है। were completely exposed
and you are completely naked in front of the world. आप पूरे समाज के सामने आपको नग्न करके आपको वहां पर टांग दिया जाता है। People came, saw, and mocked. लोग आए, देखे और उन्होंने उसका ठट्टा उड़ाया। It was ultimate dehumanization. प्रिय यीशु वो मनुष्य ही नहीं रहा उस क्रूस की ओर। Why did Jesus endure it? प्रिय यीशु, प्रभु यीशु मसीह ये सारा दर्द उसने क्यों सह लिया? Jesus was stripped naked so that you and me could be covered. प्रिय यीशु, प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र इसलिए उतारा गया जिससे कि आप और हम को धार्मिकता का वस्त्र मिल पाए। 2 Corinthians 5:21, for our sake he was made sin. He made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. दूसरे कुरिन्थियों 5 उसके 21 में कहता है कि जो पाप नहीं था वो हमारे वास्ते परमेश्वर पिता ने उसको पाप बना दिया, जिससे कि हम और आप क्या बन जाएं? परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। He covers it by not counting it against us, by counting the sins of mankind against his only begotten Son, Jesus Christ. प्रिय चीजों, जो हमारे पापों को वो हमारे ऊपर नहीं गिनता है, परंतु अपने पुत्र में उसको गिनकर उसने अपने पुत्र को क्रूस पर मार डाला। He gave a status to Jesus that he did not deserve, so that we could have a status in Christ that we did not deserve. हमको एक ऐसा स्थान परमेश्वर ने दिया, और कैसे दिया कि उसने ऐसा स्थान अपने पुत्र को दिया जिसकी वो चेष्टा नहीं करता था, जिसके लिए वो फलदारी नहीं था। In 1 Peter 3 verses 18 we'll read and we'll close. पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। Christ died for the sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए, धर्मियों ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचे। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। I don't know what each one of you are going through this morning. प्रिय जीसो, मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या आपके जीवन में घट रही है, But you should take comfort in the fact that you have a God who comes to you. परंतु आप इस बात में आश्वासन ले कि आपको धर धर नहीं भटकना है। एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको ढूंढते हुए आ रहा है। We'll just read the lines of his famous hymn. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate and hath shed his own blood for my soul. My sin, oh the bliss of this glorious thought, my sin not in part but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, O my soul. That's the joy that should rule our hearts this morning. प्रिय जीजो, हम इसलिए कहते हैं कि सब कुछ मेरे साथ ठीक है और होगी और हमेशा के लिए होगी, इसलिए क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह में हम माफ किए गए हैं। उसने हमारे पापों का कोप अपने ऊपर लेकर हमें माफ किया है। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि मैं धन्य हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं प्रसन्नित हूँ। Oh, let us be broken and be contrite in His presence this morning. ये यीशु, हम अपने टूटे हुए हृदय के साथ अपने पापों का अंगीकार करते हुए हम उसकी उपस्थिति में आ सकें। May God continues to talk to us. हम लोग इस गीत को गाएंगे हिंदी में। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। गीत नंबर
426